physios, welcome back to Believe in Therapy. I am Dr. Neha and in this videos I am covering a lower limb prosthesis. In my previous videos I have already discussed upper limb prosthesis in detail including classifications and components of a shoulder prosthesis, elbow prosthesis and wrist prosthesis, hand prosthesis. So all of these topics cover in a single videos and link is available in a description box. You can check it anytime for a complete understanding of upper limb prosthesis, and in today's videos I will covering a lower limb prosthesis including a knee joints unit, stance control mechanism, transfemoral and transtibal prosthesis. So the different type of prosthetic. So this sessions is going to be a detailed, clinically oriented and highly useful for our students. So make sure you watch this video till the end, and if you are new to the channel, so don't forget to subscribe to our Believe in Therapy and support our learning community. So now let's start a lower limb prosthesis. लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस एक आर्टिफिशियल डिवाइस के साथ साथ एक बायोमैकेनिकल रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है फॉर रिस्टोर ह्यूमन लोकोमोशंस, राइट। सो किसी पेशेंट्स का लोअर लिम्ब एम्पुटी हो जाता है, चाहे ट्रॉमा हो या अदर कॉजेज लाइक डायबिटीज या ट्यूमर, आर्टरी केसेस, एनी ऑफ द कॉजेज। सो उसके बाद सिर्फ लिम्ब लॉस नहीं होता, उसकी मोबिलिटी, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है, राइट। सो लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस में हमारा मेन गोल उसको एज अ मोबिलिटी प्रोवाइड करना ही नहीं, उसके साथ साथ उसको साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट देना होता है, इंडिपेंडेंस बनाना, राइट। सो लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस इज अ आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिसिंग लोअर लिम्ब सेगमेंट designed to restore weight bearing, balance and gait function while safely transmitting body weight from the residual limb to the grounds. So I think it's clear कि lower limb prosthesis एक artificial replacement device है for a missing lower limb segments. Okay, so is a provide as a restore a human locomotions, gait and weight distribution. So it's very useful. Now come to main goals of a lower limb prosthesis. So I think as a lower limb prosthesis used for a weight transmission, functional ambulations, provide a stance with stability, allow a smooth swing movements, prevent as a gait deviation. So as a many goals of a prosthesis, right? So stable weight bearing transmission, comfortable and pressure balance socket fit, efficient and symmetrical gait, minimum energy expenditures and secure suspensions without any positioning movements like up and down. Okay, so proper alignment and stability, good cosmetic appearance, improve patient confidence and independence. Like main goal as a reduce the energy expenditures भी होता है, improve the symmetry, psychologically comfortable. So always remember this कि lower limb process का primary focus function and patients को like independence बनाना है, right? Discuss a basic components of a lower limb prosthesis. So basic components like measure of 5 components. So first is a socket is the most important components, like socket is the interface between a residual limb and prosthesis. So I think अगर शॉर्ट सॉकेट फिटिंग परफेक्ट नहीं होती तो पेशेंट्स अनकंफर्टेबल होगा। ओके, तो क्या हो सकता है, मे बी ऐसा पेन होगा पेशेंट्स को एंड प्रेशर सोर्स इंक्रीज हो सकता है, स्किन ब्रेक हो सकती है, लूज हो सकता है सॉकेट तो फॉल हो जाएगा पेशेंट्स। ओके, तो स्टेबिलिटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। तो सॉकेट इज अ इंटरफेस बिटवीन अ रेजिडुअल लिम्ब एंड prosthesis, help in a transfer body weight, maintain a stability and prevent a skin breakdown. If a perfect fitting नहीं है तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। लाइक सॉकेट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रेशर्स टॉलरेंट एरियाज हैं, जो प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हैं, वेट को वियर कर सकते हैं, उन्हीं एरियाज पे लोड देना है। एंड जो प्रेशर सेंसिटिव एरियाज हैं, वीक एरियाज हैं, उन एरियाज को रिलीफ रखना है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। लाइक ये बायोमैकेनिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशंस के गेम टाइप का है कि जो भी लोड को वियर कर सकता है उस एरियाज पे ही वेट ट्रांसमिशंस करना है। Okay, next is a suspension system. So suspensions, I think suspensions का एक ही मेन रोल है कि प्रोसेस को लिम्ब पर एज अ सिक्योर करना, होल्ड रखना, राइट। सो mechanism that hold prosthesis secure to a limb during a swing phase and prevent any of the positioning movements like up and down. If a suspension weak है तो positioning movements देखने को मिलेगा, up down movements होगा, rotations हो सकता है, मे बी instability होगी पेशेंट्स को। और सस्पेंशन सिलेक्शन जो पेशेंट्स का किस चीज पे करते हैं, एक्टिविटी लेवल पे करते हैं, लिम्ब की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, स्किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक पायलन है, एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक ये जो है कंपोनेंट्स एज अ वेट डिस्ट्रीब्यूशंस में हेल्प करते हैं
तो जैसे कि हमारा पाइलन हो गया, तो ये क्या करता है, ये कनेक्टिंग रॉड की तरह है जो सॉकेट को, एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक दिस टाइप ऑफ ट्यूब, सो दिस इज अ पाइलन। ओके, तो ये कनेक्टिंग रॉड है जो सॉकेट को फुट से कनेक्ट करता है, लोड ट्रांसमिशन करता है, मोस्टली एज अ एल्युमिनियम और टाइटेनियम या कार्बन फाइबर्स के बने होते हैं। ओके, तो इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एंडोस्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है। सो आई थिंक एंडोस्केलेटन मीन्स अ जो पार्ट इंटरनल मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, लाइक मेन यूज फॉर अ लाइट वेटिंग एंड अलाइनमेंट एडजस्टेबल, इजी रिपेयरिंग। एंड एक्सोस्केलेटन जो है वो रिजिड आउटर शेल्स है जो ड्यूरेबल होता है। ओके, तो मॉडर्न एज अ यूज कर रहे हैं हम एंडोस्केलेटन्स को। सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आई थिंक इट्स इंटरनल फ्रेम connecting socket to a foot, provide a strength and allow alignment adjustment. Okay, next component is a joints unit. So joint unit like depending on a amputation level, कि amputations level आपका hip disc articulation हुआ तो joints जो होगा वो हमारा knee joints और ankle joints होगा, right? If a knee joints like disc articulations हुआ है तो हमारा ankle joints होगा। तो depending on a level like transfemoral में knee joints unit essential होता है, हिप डिसआर्टिकुलेशन में हिप एंड नी दोनों यूनिट होते हैं। सो आई थिंक कि जॉइंट्स यूनिट्स क्या होता है। ओके, सो रिप्लेस लॉस्ट जॉइंट मोशन एंड प्रोवाइड कंट्रोल मूवमेंट्स ड्यूरिंग अ गेट। नेक्स्ट इज अ प्रोस्थेटिक फुट। सो प्रोस्थेटिक फुट लाइक हम लास्ट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोस्थेटिक फुट मीन्स अ शॉक एब्जॉर्प्शंस, लाइक इसमें हील शॉक सैच हील होता है। ओके, एंड एनर्जी रिटर्न्स लाइक डायनामिक हील जो होती है वो एनर्जी रिटर्न करते हैं। पुश अप फेज में लाइक हेल्पफुल होता है, पुश अप फेज में जनरेट करता है, इजी होता है। फुट सिलेक्शंस और गेट इफिशिएंसी ये डिसाइड करता है। ओके, तो ये मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस में हर जगह आपको पढ़ने को मिलेंगे। लाइक हिप डिस्क आर्टिकुलेशंस में कुछ नया मिलेगा, नी में कुछ डिफरेंट होगा, एंड एंकल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लास्ट तक रहिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। कितना हम एफर्ट देते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक सपोर्ट लाइक तो बनता है आपका। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस अबव नी। सो ट्रांसफीमोरल लाइक ये यूज करते जब एम्पुटेशंस का जो लेवल है वो अबव द नीज वेंस होता है। इस लेवल पर हमारा नीज वेंस एब्सेंस होता है, तो ये बहुत चैलेंजेस भरा होता है पेशेंट्स के लिए। लाइक इसमें क्या होता है ना कि हाई एनर्जी कंजप्शन होता है कंपेयर टू अदर लाइक नॉर्मल एज अ 60 to 70% मोर देन एज अ नॉर्मल। ओके, तो पेशेंट्स को लाइक बैलेंस की भी डिफिकल्टी होती है, रिस्क भी होता है नी बकलिंग हो, एंड पुअर प्रोप्रियोसेप्शंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा ये। सो ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस यूज्ड आफ्टर एम्पुटेशंस अबव नी जॉइंट्स। ओके, चैलेंजेस क्या होते हैं, नी जॉइंट्स लॉस हो गया तो जॉइंट्स एक्सेस मूवमेंट्स लाइक रोटेशंस मूवमेंट्स, आई थिंक एज अ जॉइंट्स ही लॉस है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली होगा पेशेंट्स के लिए, बहुत हाई एनर्जी कंजप्शन वाला होगा। सो इज अ रिक्वायर्ड अ हाई एनर्जी, नीड आर्टिफिशियल नी स्टेबिलिटी। ओके, नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ कंपोनेंट्स of a transfemoral prosthesis. So first component as a socket. So I think socket is very important. So transfemoral socket डिजाइन को समझने का बेस्ट वे है उसके इवेल्युएशंस को समझना। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ, 5 to 6 सॉकेट डेवलप हुए। ओके, एंड कुछ लिमिटेशंस रही उसके अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ, कुछ ना कुछ मॉडिफाइड हुआ पेशेंट्स के लाइक गेट पैटर्न्स को और ज़्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए, एंड पेशेंट्स को प्रॉब्लम फेसेस ना हो। ओके, तो उस कंडीशंस में 5 to 6 सॉकेट डिजाइन हुए। सो फर्स्ट था हमारा क्वाड्रिलेटरल सॉकेट। सो क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ट्रेडिशंस डिजाइन था, लाइक क्वाड्री से समझ में आ सकता है लाइक फोर्स एज इसमें लेयरिंग थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉकेट। सो इसका जो शेप था वो रेक्टेंगुलर होता है, और वेट बेरिंग मेनली इसमें क्या था कि वो पोस्टीरियर सेल्फ पे था। लाइक इसमें क्या था कि जो इशियल टिब्रोसिटी है वो पोस्टीरियर बॉल पर रेस्ट करती है, और फीमर स्लाइटली अबडक्शन पोजीशंस में था। ओके, तो इसका जो मेन फीचर्स क्या थे, लाइक रेक्टेंगुलर शेप था, पोस्टीरियर सेल्फ सपोर्ट आइशियम एंड नैरो एपिडायमिस, लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था वो थोड़ा नैरोइंग था। उस कंडीशंस में पेशेंट्स का जो फीमर बोन था वो अबडक्शंस में जा रहा था। लाइक जो पेशेंट्स था वो अबडक्टेड लाइक टंग को लीन कर रहा था, एंड उसका जो स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रही थी। ओके, तो इसका एक एडवांटेज था कि सिंपल था, स्टेबल था इन स्टैटिक स्टैंडिंग के लिए, बट डिसएडवांटेज इसमें बहुत सारे थे। लाइक पेशेंट्स को फीमर अबडक्शंस में जा रहा था, लेटरल ट्रंक था, पुअर मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी थी,
एंड एनर्जी कंजप्शंस बहुत ज़्यादा था। तो फिर कुछ टाइम बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ, लाइक जिसको हम बोलते हैं इशियल कंटेनमेंट्स। सो इस डिज़ाइन में इशियल टिब्रोसिटी को सॉकेट के अंदर इंक्लूड किया गया। इसमें क्या था कि हमारी जो इशियल टिब्रोसिटी थी वो हमारे सॉकेट पे थी, बट इशियल कंटेनमेंट में क्या हुआ कि इशियल टिब्रोसिटी को सॉकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ओके, सो इनक्लोज विद इन अ सॉकेट फॉर अ बेटर कंट्रोल। एडवांटेज इसके क्या हुए कि इंप्रूव पेल्विक स्टेबिलिटी हो गई, बेटर गेट सिमेट्री, रिड्यूस लेटरल ट्रंक लीन। बट फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस रहे, लाइक टाइट फिटिंग फील हुआ पेशेंट्स को, डॉनिंग एंड डॉफिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लाइक प्रोस्थेसिस को यूज करना एंड उसको फिर रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। सो इसको भी यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशंस किया गया। इसमें भी एज अ रोटेशंस नहीं हो पा रहा था, तो इसके बाद इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ। जो मॉडिफिकेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं कैट कैम सॉकेट। कैट कैम सॉकेट में क्या हुआ कि जो पेशेंट्स का फीवर था, लाइक हिप जो था वो अबडक्शंस में जा रहा था, उसको अडक्शंस में कंट्रोल किया गया, एंड जो लेटरल बॉल थी उसको थोड़ा सा हाई कर दिया गया। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं लाइक दिस इज अ लेटरल बॉल, एंड इसको क्या किया, हाई कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसको हाई किया, लाइक इसमें जो मीडियल और लेटरल हमारा जो साइड था बॉल थी उसको नैरो कर दिया गया, एंड जो लेटरल बॉल थी उसको हाई कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि फीमर अडक्टेड अलाइनमेंट्स में आ गई। इसके एडवांटेज क्या थे कि बेटर फीमोरल अलाइनमेंट्स था, रिड्यूस ट्रंक लीन था, इम्प्रूव गेट सिमेट्री थी, बट फिर भी कुछ लिमिटेशंस आ गई। लाइक इससे एडवांटेज हो गए कि फैब्रिकेशन इसका जो था वो कॉम्प्लेक्स था, इशियम फुली कंटेंट नहीं हो पा रहा था इसके अंदर, पेशेंट्स कंफर्ट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो यहाँ पे फिर से कुछ डिजाइनर ने चेंज किया, खुद फिर से मॉडिफिकेशंस किया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लाइक कैट कैम सॉकेट्स क्या है, नैरो एमएल एंड वाइड एपी सॉकेट्स, इशियल कंटेनमेंट डिजाइन, फीमर मेंटेन एडक्शन पोजिशंस, हाई लेटरल वॉल कवर टू अ ग्रेटर ट्रोकेंटर, improve pelvic stability and gait efficiencies। एडवांटेज क्या थी कि बेटर मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी थी, रिड्यूस लिम्ब था, एनर्जी एफिशिएंस गेट भी बेटर था। बट डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें इशियम फुली कंटेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए डिजाइनर ने पेल्विस को भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया। एंड देन एक नया फिर से उन्होंने मॉडिफिकेशंस करके एक सॉकेट तैयार किया, टोटल सरफेस बेयरिंग सॉकेट। लाइक ये इसमें फोकस क्या हुआ कि कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगे कि पेशेंट्स को कंफर्ट में फील होना चाहिए। तो टीएसवी का एक प्रिंसिपल है कि प्रेशर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर एक पॉइंट्स पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेन इसके जो फीचर्स थे लाइक इक्वल प्रेशर्स होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रेशर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक सेल्फ पे प्रेशर्स नहीं जाना चाहिए। ओके, सो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ इंटायर रेजिडुअल लिम्ब, इक्वल प्रोसेस लोडिंग, यूजेस अ लाइनर प्लस सक्शन सस्पेंशन, रिड्यूस प्रेशर स्विंग। तो इसके एडवांटेज क्या हुआ कि लेस स्किन ब्रेकडाउन हुआ, बेटर सर्कुलेशन हुआ, एंड इम्प्रूव प्रोप्रियोसेप्शन हुआ, पेशेंट्स का कंफर्ट भी अच्छा हुआ। ओके, डिसएडवांटेज भी इसमें कुछ थी कि रिक्वायर अ गुड सस्पेंशन, सस्पेंशन लाइक होल्डिंग। ओके, तो रिक्वायर अ गुड सस्पेंशन, एंड यहाँ पे वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस इशू आए पेशेंट्स को। ओके, और ये थोड़ा सा फिट नहीं हो पाया। तो फिट नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ जिसमें आया सब इशियल सॉकेट। सब इशियल ये मॉडर्न लो ट्रिम डिजाइन है जिसको हम बोलते हैं सब इशियल। ओके, इसका मेन फीचर्स क्या था कि इसे ट्रिम लोअर ट्रिम डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे, तो ये जो सॉकेट थे ये एंटीली लेटरली बहुत ज़्यादा इनका वॉल डिज़ाइन किया गया था, बट यहाँ पे क्या है सब इशियल सॉकेट ये हमारे ट्रोकेंटल लेवल से लो है, लोअर ट्रिम लाइन हो गया, इशियम इसमें क्या हुई आउटसाइड हो गई। अभी तक क्या था कि इशियम जो थी वो हमारे सॉकेट के अंदर थी, बट यहाँ पे क्या है कि सॉकेट से बाहर इशियम। ओके, इसमें क्या हुआ एडवांस सक्शन वैक्यूम सस्पेंशन आया, अच्छा यूज किया सक्शन एंड वैक्यूम सस्पेंशन, नो इशियल वेट वेयरिंग, ग्रेटर हिप रेंज ऑफ मोशन हो गई, यहाँ पे लाइट वेट एंड कंफर्टेबल हो गया। एडवांटेज क्या हुए पेशेंट्स के लिए लाइक ग्रेटर हिप मोबिलिटी, इंक्रीज कंफर्ट, इम्प्रूव सिटिंग टॉलरेंस, मोर नेचुरल मूवमेंट्स। ओके, लाइक लाइट वेट फील हुआ, मोर कंफर्ट हुआ, बट फिर भी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रहे। लाइक डिसएडवांटेज क्या हुआ पेशेंट्स को, सस्पेंशन फेलियर रिस्क हुआ, सुटेबल नहीं हुआ पेशेंट्स सभी पेशेंट्स पे, एंड हाई फैब्रिकेशन प्रिसीजन इसमें नीड हुआ। सो उसके बाद फिर से कुछ नया डेवलप हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इशियल कंटेनमेंट सेल कंटेनमेंट सॉकेट। लाइक इसके अंदर क्या हुआ, इसको हम इशियल कंटेनमेंट, इशियल रैमल कंटेनमेंट भी बोलते हैं, आईआरसी। लाइक यहाँ पे सिर्फ इशियम नहीं,
नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ इशियल कंटेनमेंट और अ सेल कंटेनमेंट सॉकेट, लाइक इसको हम इशियल रैमल कंटेनमेंट भी बोलते हैं, IRC। ओके, लाइक इसमें क्या हुआ, इशियल और रैमस दोनों ही सॉकेट के अंदर इंक्लूड हुए हैं। सो इनक्लोज इशियम प्लस रैमस इनसाइड अ सॉकेट। ओके, तो लाइक इसके मेन जो फीचर्स थे इशियम और रैमस इनसाइड द सॉकेट एंड इनहांस मीडियल सपोर्ट, लाइक यहाँ पे मीडियल सपोर्ट बहुत अच्छा मिला पेशेंट्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस ओनली, अभी आपने डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सब इशियल सॉकेट, ये हमारा लाइक इसमें क्या था कि गेट जो हमारा इशियल टिब्रोसिटी है वो इससे बाहर है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक दिस, ये हमारा क्या है, इशियल रैमस। तो इसमें क्या है कि इशियल और हमारा इंफीरियर प्यूबिक रैमस जो है वो इसी में इंक्लूड है। ओके, सो इस प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग pelvic कंट्रोल, प्रिवेंट femoral abductions, improve alignment during a stance phase। so इसका मेन एडवांटेज थे लाइक सुपीरियर pelvic stability, maximum stability, better gait symmetry, better rotational control and improve a dynamic balance suitable for a active amputee patients। ओके, तो इसके जो कुछ एडवांटेज थे, बट इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज हुए, पेशेंट्स को इनिशियली डिस्कम्फर्ट फील हुआ एंड इसमें क्या था कि हमें एक्यूरेट कास्टिंग एसेंशियल था, टाइम कंज्यूमिंग फिटिंग था, बट स्टेबिलिटी इसमें ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, तो ये बहुत यूज में है। एंड ये जो टोटल सरफेस बेयरिंग है आज के टाइम सबसे ज्यादा यूजफुल में है, क्योंकि ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन इवनली ऑल स्ट्रक्चर्स पे डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये बहुत ही यूजफुल है ये। सो आई थिंक इज क्लियर कि सॉकेट कितना इंपॉर्टेंस रखता है पेशेंट्स के लाइक गेट पैटर्न्स में, एनर्जी कंजप्शन में। ओके, कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सस्पेंशन मैकेनिज्म। सो सस्पेंशन मैकेनिज्म, यू नो, सॉकेट तब तक यूजफुल नहीं है जब तक उसका सस्पेंशन प्रॉपर ना हो, राइट। सस्पेंशन का मीन्स ही है कि प्रोस्थेसिस को रेजिडुअल लिम्ब पर सिक्योर होल्ड करना, जिससे कि वॉकिंग के टाइम वो लूज ना हो, राइट। सो सस्पेंशन सिस्टम मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल और सक्शन बेस्ड सस्पेंशन। सो मैकेनिकल आई थिंक यू नो जिसमें कि फोर्स लग रहा है, और सक्शन बेस्ड सस्पेंशन लाइक इसमें कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा हो। तो यहाँ पे कुछ हम 5 टाइप के सस्पेंशन समझेंगे जो कि लोअर लिम्ब में मोस्टली यूज होते हैं। तो फर्स्ट एज अ सक्शन सस्पेंशन, जिसको हम सील इन लाइनर भी बोलते हैं। लाइक सील इन लाइनर में क्या होता है कि एक सक्शन बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम है जहाँ पे सिलिकॉन लाइनर पे मल्टीपल सीलिंग रिंग होते हैं, लाइक जो कि रिंग जो होते हैं, पेशेंट्स जब सॉकेट के अंदर लिम्ब इंसर्ट करता है तो इसमें क्या होता है कि जो एयर फिल होती है वो एयर बाहर निकल जाती है और एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सो वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है प्रोस्थेसिस को हमारे रेजिडुअल लिम्ब से। ओके, तो लाइक इसमें कोई भी हमें एक्सटर्नल बेल्ट या स्ट्रैप्स का नीड नहीं होता है, एयर टाइट सील होता है, नो एक्सटर्नल बेल्ट, और इवन सस्पेंशन रहता है, गुड कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, सीलिंग रिंग मेंटेन सक्शंस। ओके, तो मेन एडवांटेज क्या है इसकी कि ये सिक्योर होता है, फिटिंग होती है अच्छी, लेस पिसनिंग होता है, कोई भी इसमें आउट एंड लो लाइक मूवमेंट्स नहीं होते हैं आउटवर्ड इनवर्ड वाले, और बेटर प्रोप्रियोसेप्शन से मोर कॉस्मेटिक है। बट डिसएडवांटेज भी है इसके, लाइक पेशेंट्स को डॉनिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, स्वेटिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, वॉल्यूम फ्लक्चुएशन इश्यूज रहता है। ओके, सो नेक्स्ट एज अ पिन लॉक। पिन लॉक लाइक ये मैकेनिकल लॉकिंग सेक्शन है, एक लाइनर बेस्ड सिस्टम है, लेकिन इसमें सेक्शंस की वजह से मैकेनिकल लॉकिंग हो जाती है। इसको जरा इमेज में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया हुआ था, जस्ट अ वेट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक दिस इज अ पिन लॉक सिस्टम। ये जो पिन है इसको हम बोलते हैं पिन लॉक, लाइक ये सिलिकॉन लाइनर के जो सिलिकॉन लाइनर है इसके डिस्टल एंड पे होता है, ये पिन सॉकेट के लॉक मैकेनिज्म में क्लिक हो जाता है। लाइक जब इसको लॉक करेंगे तो एक ऑडिबल लॉकिंग साउंड आएगा, इजी होगा डॉनिंग के लिए। एंड इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इजी टू यूज है और सिक्योर रखता है हमारे डिजिटल फिक्सेशंस को, अफोर्डेबल है। ओके, लेकिन डिसएडवांटेज भी है इसके कि डिजिटल ट्रैक्शंस पे पेन होने लगता है पेशेंट्स को, पिसनिंग मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती है और लॉक में भी डैमेज हो सकता है। तो आई थिंक इज क्लियर कि सक्शन सस्पेंशन और पिन लॉक सस्पेंशन क्या है। नेक्स्ट आते हैं बेल्ट सपोर्ट। बेल्ट सपोर्ट यू नो वेस्ट बेल्ट लाइक ये एक मैकेनिकल सस्पेंशन है जो ओल्डर डिजाइन में ज्यादा यूज होता था, लाइक प्रोसेस को एक बेल्ट के थ्रू बेस्ट से अटैच किया जाता है। ओके, लाइक इसके जो मेन फीचर्स क्या है कि एक्सटर्नल स्ट्रैप जो है वो विजिबल होती है, सिंपल मैकेनिज्म है, लाइक इसको मोस्टली लोग यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है कि सिंपल है, यूजफुल है फॉर अ शॉर्ट स्टंप के लिए, इकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस कॉस्मेटिक है और लिमिटेड मोबिलिटी रखती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कम टू अ सिलिशियन बेल्ट।
सिलिशियन बेल्ट एक मॉडिफाइड वर्जन है स्पेशली ट्रांसफ्यूरल प्रोस्थेसिस के लिए। लाइक ये बेल्ट पेल्विस के अक्रॉस डायगोनली पास होती है, डायगोनल टाइप होती है, डायगोनल स्टेप अराउंड द पेल्विस। ओके, लाइक ये एडिशनल लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को। मेन फीचर्स के क्या है कि ये डायगोनल स्ट्रैप सिस्टम है, बेटर रोटेशनल कंट्रोल है इसमें, एंड एक्स्ट्रा मीडियल लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यूजफुल है फॉर शॉर्ट रेजिडुअल लिम्ब के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा बल्की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक बल्की है थोड़ा सा, क्लॉथिंग फिटिंग इशूज है एंड लेस कॉस्मेटिक है। ओके, सो ये जो देख रहे हैं आप ये हमारा सिलिशियन बेल्ट ही है। ओके, नेक्स्ट come to a test belt. So it's important. Test belt means a total elastic suspension belt. Like ये जो इलास्टिक से बना होता है, इलास्टिक बेल्ट सॉकेट को पेल्विस से होल्ड करता है और ये बहुत फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल सपोर्ट देता है। सो मेन फीचर्स लाइक ये इलास्टिक सस्पेंशन इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ, लाइट वेटेड है एंड एडेड रोटेशनल कंट्रोल। एडवांटेज क्या है कि ये मोर कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स, इजी डोनिंग हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस सिक्योर कंपेयर टू द सक्शन सस्पेंशन एंड इलास्टिसिटी टाइम के साथ साथ लूज हो सकती है। ओके, सो आई थिंक इस क्लियर कि सस्पेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोस्थेसिस फिटिंग में। ओके, कम टू आवर नी जॉइंट्स यूनिट। सो सॉकेट और सस्पेंशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है नी जॉइंट्स यूनिट। लाइक नी डिजाइन का मेन गोल है स्टांस फेज में स्टेबिलिटी और स्विंग फेज में स्मूथ मूवमेंट्स प्रोवाइड करना। ओके, तो इसमें भी हमारे कुछ 4 कंपोनेंट्स हैं। मैकेनिकल नी, लाइक मैकेनिकल नी सबसे बेसिक डिजाइन होता है जिसमें कि हम कुछ एक्सिस, सिंगल एक्सिस एंड पॉलीसेंट्रिक जॉइंट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगल एक्सिस मीन्स समझ में आता है कि नी एक सिंपल हिंज जॉइंट्स की तरह मूव करता है, बिल्कुल जैसे कि डोर ओपन करते ना उस टाइप। लाइक इसमें एक ही एक्सिस होता है, एक ही मूवमेंट होगा। ओके, तो इसके जो मेन फीचर्स होते हैं कि एक ही पाइवट पॉइंट्स है, सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल है, लाइट वेटेड है, लो कॉस्ट है, इजी इसको यूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉलीसेंट्रिक मीन्स अ फोर मैकेनिज्म। लाइक इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा एक्सिस जॉइंट्स एक्सिस होती हैं। ओके, लाइक पाइवट पॉइंट होते हैं, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट्स मल्टीपल मूवमेंट्स कर सकता है नी जॉइंट्स पे, मल्टीपल पाइवट पॉइंट और मूविंग सेंटर रोटेशंस भी हो सकता है, शॉर्टनिंग ड्यूरिंग अ स्विंग फेज। एडवांटेज इसके क्या है कि ये बेटर है स्टांस स्टेबिलिटी के लिए, टो क्लियरेंस के लिए। डिसएडवांटेज इसके क्या होता है कि ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है और मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कॉस्टली भी है। ओके, तो ये हमारा मैकेनिकल नी हो गया, सिंगल एक्सिस और पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट इज अ वेट एक्टिवेटेड नी। लाइक जब भी पेशेंट्स अपनी प्रोस्थेसिस पे वेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा कि नी जॉइंट ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगा, लाइक लॉक और अनलॉक। जब वेट प्रोस्थेसिस पे जाएगा तो नी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा इन अ स्टांस फेज, एंड जैसे ही वेट को हम रिमूव करेंगे, लाइक जैसे कि स्विंग फेज में आएंगे तो नी जॉइंट से वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो ये सेफ है फॉर एल्डरली पेशेंट्स के लिए, गुड सेफ्टी है, कॉन्फिडेंस देता है, बट डिसएडवांटेज है नेचुरल गेट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, लाइक जो वॉकिंग है थोड़ा स्टेप लगता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट कम टू अ फ्लूइड कंट्रोल नी। फ्लूइड कंट्रोल लाइक ये मैकेनिकल से एक स्टेप आगे है। फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम लाइक ये 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिक नी और न्यूमेटिक नी। हाइड्रोलिक नी जो है मीन्स समझ में आता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइक ये ऑयल फिल्ड चैम्बर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑयल फिल्ड है तो ये फ्लूइड रेजिस्टेंस एडजस्टेबल होता है, लाइक ये स्पीड के अकॉर्डिंग होते हैं, स्मूथ कंट्रोल मूवमेंट्स कराते हैं। गेट वेरिएबल, लाइक वेरिएबल वॉकिंग स्पीड पॉसिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है इसमें। न्यूमेटिक से समझ आता है लाइक एयर रेजिस्टेंस। ओके, लाइक एयर प्रेशर रेजिस्टेंस का यूज करता है इसमें। एडवांटेज लाइक लाइट वेट है, बेटर है फॉर मीडियम एक्टिविटी। ओके, लेकिन ये भी थोड़ा कॉस्टली है और लेस प्रिसाइज है कंट्रोल लाइक कंपेयर टू अ हाइड्रोलिक। ओके, रेगुलेट स्विंग स्पीड, इसको लाइक ये स्विंग स्पीड को भी रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू अ माइक्रो प्रोसेसर नी। माइक्रो प्रोसेसर नी इज एडवांस डिजाइन, सबसे एडवांस है, जिसमें कि कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जैसे कि सेंसर हो गए, कंप्यूटर कंट्रोल हो गए। तो एक स्मार्ट नी होता है लाइक जिसमें सेंसर डिटेक्ट करते हैं स्पीड, एंगल, ग्राउंड रिएक्शंस फोर्स को, और कंप्यूटर सिस्टम
कंटिन्यूसली एडजस्ट करता है रेजिस्टेंस को। ओके, लाइक ये क्या है, रियल टाइम डेटा देता है। फीचर्स क्या है इसके, लाइक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है, गायरोस्कोप होता है, लोड सेंसर्स होते हैं। ओके, तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि हाईली नेचुरल गेट देता है, फॉल रिस्क इसमें रिड्यूस है, वेरिएबल है, एनर्जी इफिशिएंट है। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बैटरी डिपेंडेंट है, और रेगुलर इसमें चार्जिंग की रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो आई थिंक इज क्लियर। एडजस्टेबल है, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस फॉल रिस्क। सो इज अ एडवांस मैकेनिज्म। पहले क्या था, मैकेनिकल नहीं, वेट एक्टिवेटेड नहीं, फ्लूइड कंट्रोल नहीं, एंड माइक्रो प्रोसेसर नहीं। आई थिंक इज क्लियर। लाइक प्रोसेसर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा न्यूमेटिक नहीं है। ओके, ये हमारा सेक्शन हो गया, ये न्यूमेटिक नहीं हो गया। ओके, सो ये सैच फुट है, फ्लेक्सिबल जो कि अभी हम लोग एंकल्स पे पढ़ेंगे, एक्सियल प्रोसेसर्स हो गए, एंड डायनेमिक। ये हमारे सब क्या है कि ये एंकल जॉइंट्स के हैं, बट यहाँ पे आप हाइड्रोलिक एंकल प्रोसेस भी देख सकते हैं। इस टाइप का सेम एज अ नी जॉइंट्स पे होता है। ओके, come to structural components. So I think you know structural components like pylon, endoskeleton, exoskeleton. Okay, so pylon, you know, come to structural components. So structural components I think you know as a pylon हो गया, endoskeleton, exoskeleton. So pylon प्रोसेस का एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट रॉड की तरह है, एडजस्टेबल रॉड जो सॉकेट को फुट से ऐड करके रखता है। ओके, और बॉडी वेट को ट्रांसमिट करता है। देन एंडोस्केलेटन यू नो इज अ डिजाइन फॉर अ इंटरनल सेंट्रल पाइलन फ्रेमवर्क। लाइक ये बहुत कॉस्मेटिक होता है और लाइट वेट है, इजीली एडजस्टेबल है। एक्सोस्केलेटन आई थिंक यू नो एज अ आउटर हार्ड सेल्स, रिजिड सेल फॉर अ वेट बेरिंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रॉन्ग है, एडजस्टेबल, एडजस्टमेंट में लिमिटेड होता है। ओके, नेक्स्ट कम टू अ प्रोस्थेटिक फुट। सो ट्रांसफ्यूरल प्रोस्थेटिक फुट कैसा होगा, लाइक ये प्रोस्थेटिक फुट जो होते हैं वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को अब्सॉर्ब करते हैं, जिसको हम सैच फुट में बोलते हैं। लाइक बैलेंस को मेंटेन करना, पुश ऑफ फेस में फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में हेल्प करना। डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट क्या होता है, ये कार्बन फाइबर जो के बने होते हैं, लाइक ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, जैसे पुश ऑफ फेज आता है तो इसमें एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे कि वॉकिंग और ज़्यादा इफिशियंट और नेचुरल हो सके। माइक्रो प्रोसेसर फुट ये क्या होते हैं, लाइक ये हेल्प करते हैं जिसमें कि फुट सेंसर्स और कंप्यूटर कंट्रोल होता है। ये एंकल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है और अनइवन सरफेस पर भी स्टेबल रखता है। ओके, तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू अ हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस. Hip disarticulation prosthesis, you know, as an artificial limb provided when an entire lower limb, including a femur, is removed at the hip joints level. Like जहाँ पे femur भी presence नहीं होता है, completely limb loss होता है up to a hip joints, उसमें उसको हम बोलते हैं hip disarticulations. Like वहाँ पे हम जो prosthesis provide करते हैं उसको hip disarticulations prosthesis बोलते हैं. Prosthesis used when an entire femur, including hip joint, is amputated. मेन कैरेक्टरिस्टिक लाइक इसमें कोई भी फीमोरल कंट्रोल नहीं होता है, इंटायर प्रोसेस पेल्विक कंट्रोल पर डिपेंड करता है। नो फीमर लेबर आर्म, रिक्वायर आर्टिफिशियल हिप एंड नी जॉइंट्स। वेरी हाई एनर्जी डिमांडिंग होता है, हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ गेट पैटर्न्स। कॉस्मेटिकली है, वर्ल्की है, बट बायोमैकेनिकली बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं पेशेंट्स के लिए। तो ये प्रोस्थेसिस फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के लिए दिया जाता है, स्पेशली मोबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। ओके, इसके कंपोनेंट्स सेम वही कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं इन डिटेल। ओके, लाइक पेल्विक सॉकेट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जो कि पेल्विस को इंटरफेस करके रखता है। लाइक इलियक क्रस्ट और इशियल एरियाज को कवर करता है, जो भी हमारा रेजिडुअल लिम्ब है और प्रोसेस के बीच। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमारा पेल्विस है वो इंक्लूड रहता है, सो इसलिए इसको बोलते हैं पेल्विक सॉकेट। मेन पर्पस क्या होते हैं, इसको बॉडी वेट ट्रांसमिट करना, weight borne through ischium and gluteal areas, provide pelvic stability. Okay, so I think is clear. Like इसमें usually opening anterior side पर होती है और dawning. So I think it's clear. Next, hip joints unit. यहाँ पे क्या है कि hip joints unit और knee joints unit दोनों ही involve होंगे. So hip joint unit artificial hip joints usually है. Like इसमें single axis होता है और extension जो है वो assist मैकेनिज्म के साथ होता है। लाइक सिंगल एक्सिस मींस अलाउ अ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। कंट्रोल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ स्टैंस फेज, मैकेनिकल कंट्रोल बेस्ड होते हैं। ओके, आई थिंक इज क्लियर। लाइक इसमें अबडक्शन और एडक्शन यूजुअली रिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज अ नी जॉइंट यूनिट। सो हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस में जनरली नी यूनिट होता है, लाइक लॉक नी, अनलॉक नी,
ओके, सो ये वेट एक्टिवेट जैसे होता है स्टांस फेज में तो नी लॉक हो जाती है, और जैसे ही वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइक अनलॉक हो जाता है स्विंग फेज में। ओके, पर्पस क्या है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ स्टांस फेज। सो ये नी जॉइंट यूनिट मैकेनिकल और माइक्रो प्रोसेसेस होती है, जो कि अभी हमने लास्ट अभी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज अ पायलन। सो आई थिंक यू नो पायलन इज अ एज अ रॉड टाइप जो कि सॉकेट को नी और फुट से कनेक्ट करके रखता है, वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोस्थेटिक फुट। सो आई थिंक यू नो जनरली यू नो प्रोस्थेटिक फुट में सैच फुट या डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट यूज होते हैं, पर्पस लाइक शॉक एब्जॉर्प्शन, स्टेबिलिटी और फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोस्थेटिक फुट इन डिटेल हम फुट ऑर्थोसिस में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक इज क्लियर। नेक्स्ट कम टू अ सस्पेंशन। सो सस्पेंशन मेनली पाल्विक कंट्रोल के बेस्ड पर होता है। आई थिंक यू नो सस्पेंशन एज अ पाल्विक बैंड सस्पेंशन, waist belt suspension, strap system, test belt, custom pelvic socket. So I think you know is in the last हमने डिस्कस किया हुआ है बेस्ट बेल्ट pelvic band जो कि लेटरली सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड हमारे प्रोस्थेसिस को उसके रेजिडुअल लिम्ब से सिक्योर करके रखते हैं। ओके, सो आई थिंक इज क्लियर। मेन पर्पस एज अ मेंटेन अटैचमेंट एंड प्रिवेंट प्रोस्थेसिस स्लिपिंग। Next, come to a knee disarticulation prosthesis. This process like provider when amputations is done through a knee joints, preserving a entire femur. So यहाँ femur completely रहता है, बस tabia remove हो जाती है. Okay, so as a seen as a long residual limb and wearing possible है self suspension due to femoral condyles, better rotational control than transfemoral. Okay, compared to a transfemoral. सो मेन कंपोनेंट्स लाइक यू नो सॉकेट है, नी यूनिट हो गया, पायलन है, फुट प्रोस्थेसिस हो गया। सॉकेट बल्बोअस फीमोरल कॉन्डाइल को अकोमोडेट करता है, वेट बेयरिंग मेनली डिस्टल एंड और कॉन्डाइलर फ्लेयर्स जो होते हैं। नी जॉइंट्स यूनिट जो है वो प्रोस्थेटिक नी मैकेनिकल या स्टांस कंट्रोल टाइप हो सकता है, लाइक जो कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ माइक्रो प्रोसेसर हो गया एंड मैकेनिकल हो गया, जो कि फीमर फुल लेंथ होती है तो कंट्रोल अब नी से बेटर होगा यहाँ पे। पायलन आई थिंक यू नो एज अ कंपोनेंट लाइक अ रॉड टाइप स्ट्रक्चर्स। सो इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो नी को फुट से कनेक्ट करके रखता है, हाइट एडजस्टेबल होता है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। प्रोस्थेटिक फुट यूज जनरली सैच और डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट यूज होते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन और फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में। सो कंपोनेंट्स आई थिंक इस क्लियर ही है। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सस्पेंशन बेल्ट। सो यू नो सस्पेंशन बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टल एंड जो है नी डिसआर्टिकुलेशन में वो बल्बस होता है। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का हम सस्पेंशन बेल्ट यूज करते हैं। मैन जब सक्सेशन सस्पेंशन एडिक्वेट नहीं होता है तो हम इसका यूज करते हैं। टाइप्स लाइक बेस्ट बेल्ट हो गया, सिलिशियन बेल्ट है, पैल्विक बैंड एंड टेस्ट बेल्ट है। यू नो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वेस्ट बेल्ट होती है यूज फॉर अ जनरल सपोर्ट, लाइक बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सिंपल है और इकोनॉमिकली मेथड से यूज कर सकते हैं। सिलिशियन बेल्ट जो है यू नो एज अ प्रिवेंट अ लेटरल शिफ्ट। ओके, तो थोड़ा सा ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स देती है पेशेंट्स को। पैल्विक बेल्ट यू नो पैल्विक बेल्ट के थ्रू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है और ये हैवी या एक्टिव पेशेंट्स में मेजरली यूज होता है, यूज इन अ हिप लेवल। टेस्ट बेल्ट टोटल इलास्टिक सस्पेंशन बेल्ट है जो कि इलास्टिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लाइक इसकी जो स्ट्रैप है वो इलास्टिक से होते हैं तो बेटर सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं, कंफर्टेबल है और कॉमनली यूज होता है। सो मेन पर्पस क्या है, प्रिवेंटिंग अ पिशनिंग लाइक अप एंड डाउन मूवमेंट्स, improve a suspension, increase security during a gait. So knee disarticulations में suspension relatively easier होता है because femoral condyles जो है वो नेचुरल लॉकिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक वहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कॉन्डाइल्स पे। ओके, नाउ कम टू अ ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस, मीन्स अ below knee prosthesis. So transtibial prosthesis is provided when amputation is below knee joints and femur intact रहता है, right? So ये most energy efficient lower limb amputations level माना जाता है। So transtibial process is used when amputation is performed below the knee joints with knee joint preserve. ओके, सो इसमें क्या बायोमैकेनिकली एडवांटेज इसके क्या होते हैं कि जब नी जॉइंट्स प्रिजर्व है तो वहाँ पे बेटर कंट्रोल मिलेगा, बेटर प्रोप्रियोसेप्शंस होगा एंड एनर्जी कंजप्शंस भी लो होगा कंपेयर टू अब नीज प्रोस्थेसिस। ओके, सो 10 to 20% कम होगा, मोर नेचुरल गेट पैटर्न होगा। सो नेक्स्ट इज अ गोल्स।
So goals of trans-tibial process like proper weight transmissions, comfortable socket fitter, prevent pitching, restore push-off, maintain limb alignments. Okay, so I think it's clear. So now come to our components of trans-tibial prosthesis. So trans-tibial process is very important. Like ये मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस है. ओके, लाइक यहाँ पे एनर्जी थोड़ा सा कम यूज होती है कंपेयर टू द अबव ट्रांस फीमोरल प्रोस्थेसिस, राइट. सो सॉकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मेजरली तो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हुए हैं. सॉकेट है, सस्पेंशन है, ज्वाइंट्स लाइन है, एंड पायलन स्ट्रक्चर्स हो गया, और प्रोस्थेटिक फुट हो गया. तो ये सब तो आपने अच्छे से समझ लिया है, बट कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं. तो सॉकेट आई थिंक इज अ इंटरफेस बिटवीन अ रेजिडुअल लिम्ब एंड प्रोस्थेसिस दैट ट्रांसफर बॉडी वेट सेफली. ओके, तो इसका जो कंपोनेंट्स है, सो फर्स्ट एज अ पीटीबी, पटेलर टेंडन बियरिंग सॉकेट. सो पीटीबी सॉकेट इस टाइप से सिलेक्टिवली डिजाइन किया गया है, वेट बेयरिंग सॉकेट है, कि जो लोड है वेट का वो सिर्फ प्रेशर्स, लाइक जो सिलेक्टिवली लोड एरियाज है, प्रेशर्स टॉलरेंट एरियाज है, वहां पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो हमारे प्रेशर सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वेट का. ओके, सो मीन्स इसका जो बायोमैकेनिकली प्रिंसिपल है, मीन्स अ वेट सिर्फ प्रेशर टॉलरेंट एरियाज पर दिया जाता है, और जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको रिलीफ दिया जाता है. तो इस टाइप से ये डिजाइन है. ओके, सो selectively pressures loading weight is transmitted to a pressures tolerant areas. सो वेट बेयरिंग एरियाज हैं कौन से? प्रेशर्स टॉलरेंट एरियाज होते हैं हमारे पटेलर टेंडन्स, प्राइमरली मीडियल टीबियल फ्लेयर्स हो गया, लेटरल टीबियल फ्लेयर्स है, गैस्ट्रोइनकस मसल्स हो गई, सोलियस मसल्स हो गई. एंड रिलीफ एरियाज कौन से? जिसपे वेट डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, लाइक टीबियल क्रेस्ट है, फ्यूबरल हेड है, टीबियल टिब्रोसिटी है, डिस्टल टिबिया है, फ्यूलर हेड हो गया, हैमस्ट्रिंग टेंडेंस हो गए. तो ये इज अ रिलीफ एरियाज, लाइक ये प्रेशर सेंसिटिव एरियाज होते हैं, यहाँ पे इंजरीज हो सकते हैं, इसलिए इनको रिलीफ रखा जाएगा, और प्रेशर टॉलरेंट एरियाज वहाँ पे वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके, सो आई थिंक इज क्लियर दिस प्रिंसिपल. प्रिवेंट एक्सेसिव डिस्टल एंड प्रेशर्स एंड प्रोटेक्ट बॉडी प्रोमिनेंस. सो इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ? ये गुड प्रेशर्स टॉलरेंस हो गया, वाइडली यूज करते हैं इसको. ओके, लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि अनइवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस करता है, मे कॉज लोकलाइज स्किन इशूज, लेस कंफर्टेबल है इफ आई यूज अ लॉन्ग टर्म्स. ओके, तो सेकेंड एक और हम सॉकेट है टोटल सरफेस बेयरिंग, टीएसबी सॉकेट, लाइक इज इम्पॉर्टेंट. सो ये क्या करता है? ये टोटल इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटायर रेजिडुअल लिम्ब. ओके, सो यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर अ इंटायर रेजिडुअल लिम्ब. इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक एरियाज पर एक्सेसिव प्रेशर्स नहीं दिया जाना. यूजली ये लाइनर के साथ यूज होता है. ओके, सिलिकॉन लाइनर के साथ. मेन एडवांटेज इसकी क्या है कि इवन अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बेटर कंफर्टेबल है, लेस स्किन ब्रेकडाउन, इम्प्रूव अप्रोप्रिएट. ओके, and reduce the precious concentrations. Disadvantage है require a precise fabrications, slightly costly है ये, need a liner like silicone liner. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये हमारा पीटीबी सॉकेट है, जो कि एज अ जिसमें कि वेट जो है हमारे पटेलर टेंडन्स पे है. ये हमारा हो गया पीटीबी एसआई, लाइक सुप्राकॉन्डाइलर सॉकेट. ये हमारा पीटीबी सुप्राकॉन्डाइलर सुप्रा पटेलर सॉकेट है. ये हमारा टोटल सरफेस बेयरिंग हो गया. ओके, सो आई थिंक इज क्लियर. नेक्स्ट कम टू अ लाइनर. तो लाइनर क्या है? एक सॉफ्ट इंटरफेस है, लाइक सॉफ्ट कुशनिंग टाइप मटेरियल है, जो प्लेस्ड होता है बिटवीन स्टम्प एंड सॉकेट. ओके, लाइक प्रोवाइड अ कुशनिंग और सस्पेंशंस. सो टाइप्स ऑफ लाइनर क्या होते हैं? सिलिकॉन लाइनर है, जेल लाइनर है, फोम लाइनर होते हैं. ये क्या होते हैं? इनसाइड होते हैं सॉकेट के, जो कि कुशंस लाइक होते हैं, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है पेशेंट्स के लिए. ओके, सिलिकॉन लाइनर लाइक ये थोड़ा सा ड्यूरेबल है एंड फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है, गुड सस्पेंशन कंट्रोल देता है. जेल लाइनर ये सॉफ्ट और कुशनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है इसमें, ये यूज़ करते हैं सेंसिटिव स्किन पेशेंट्स के लिए. ओके, एंड फॉर्म लाइनर ये लाइट वेट है एंड इकोनॉमिकल है, बेसिक कुशंस को प्रोवाइड करता है, बेसिकली यूज़ में आता है फॉर्म लाइनर. okay, I think is clear. Next is functions of liner. So functions I think is clear, like shock absorptions में काम करेगा, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, reduce frictions, improve suspensions, protect sensitive areas, enhance comfort, reduce the shear force.
Okay, so liner is very helpful. Next come to a suspension system. So suspension system to is a use for a holding. Okay, like good suspension means better control, better comfort, and better confidence, right? So suspensions method used to keep process secure attached during a swing phase. If a poor, so seen as a pisning. Okay, so types of suspension is very important in a transtibial. So क्या क्या suspensions के टाइप्स हैं? फर्स्ट है सुप्राकॉन्डाइलर सस्पेंशन. सुप्राकॉन्डाइलर सस्पेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. लाइक इसमें सॉकेट है मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स के ऊपर टाइटली ग्रिप करता है. क्यों करता है? क्योंकि नी के दोनों साइड पे बॉडी प्रोमिनेंस है, कॉन्डाइल्स प्रेजेंस है, तो यहाँ पे ये लॉक कर लेता है खुद को. ओके, तो इससे क्या होता है? इजिली होल्ड रह सकता है प्रोस्थेसिस. सो सॉकेट एक्सटेंड अबव अ फीमोरल कॉन्डाइल्स. कॉन्डाइल लॉक इनसाइड अ सॉकेट. सेल्फ सस्पेंडिंग मटेरियल. ओके, सो इसमें कैसे काम करता है कि कॉन्डाइलर फ्लेयर जो है वो नेचुरल हुक की तरह यहाँ पे काम करते हैं. सॉकेट उनके ऊपर फिट होकर प्रोस्थेसिस को नीचे गिरने नहीं देता है. ओके, तो इसके मेन एडवांटेज है कि इसमें कोई भी बेल्ट और कोई भी स्ट्रैप का रिक्वायर्ड नहीं होता है. गुड मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सिंपली डिजाइंड है. डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइट फीलिंग देता है. डॉनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेशेंट्स के लिए. आई थिंक डॉफिंग एंड डॉनिंग लाइक इजली तो उसको यूज करना. एंड डॉफिंग मीन्स डॉनिंग मीन्स रिमूव करना. ओके, कॉन्डाइल्स पर ये प्रेशस पेन क्रिएट कर सकते हैं. कॉस्मेटिक थोड़ा बल्कि हो सकता है बट ठीक है. नेक्स्ट कम टू अ सस्पेंशन लाइक सुप्राकॉन्डाइलर सुप्रापटेलर सस्पेंशन. तो ये क्या होता है? इसमें सॉकेट जो है कॉन्डाइल्स के ऊपर और पटेला के ऊपर भी एक्सटेंड करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये जो था हमारा सुप्राकॉन्डाइलर था, बट यहाँ पे क्या है? सुप्राकॉन्डाइलर के साथ साथ हमारा पटेला के ऊपर भी है. एक्सटेंड अबव अ पटेला. ओके, लाइक इसमें क्या था? ये अबव नहीं जा रहा था. तो ये क्या है? सुप्राकॉन्डाइलर एक्सटेंड अबव अ पटेला. ओके, पटेला के ऊपर एक्सटेंशन लाइक ये सॉकेट कॉन्डाइल्स के ऊपर और पटेला के ऊपर एक्सटेंड हो रहा है. ये नी को एंटीरियर से भी कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये काम कैसे करता है? पटेला के ऊपर एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है और एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, राइट? सो इंप्रूव अ नी स्टेबिलिटी, कंट्रोल हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट. एडवांटेज का क्या है? ये एक्सीलेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाइपर एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है, शॉर्ट रेजिडुअल लिम्ब के लिए यूजफुल है. डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा बल्की अपीयरेंस है, नी फ्लेक्शन स्लाइटली इसमें रिस्ट्रिक्ट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट सस्पेंशन इज कप स्ट्रैप. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कप स्ट्रैप सिस्टम. तो ये क्या होता है? ये स्ट्रैप थाई के अराउंड लगता है. आप देख सकते हैं लाइक ये हमारा नी जॉइंट्स है, पटेला हो गया, सॉरी यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये हमारा पटेला हो गया, ये हमारे कॉन्डाइल्स हो गए. तो ये जो स्ट्रैप है ये थाइस पे है. तो ये क्या करते हैं? होल्ड करके रख रहा है. थोड़ा ओल्ड है बट सिंपल मेथड है. ये काम कैसे करता है कि इसमें जो स्ट्रैप है वो थाई से सपोर्ट देता है और प्रोसेस को नीचे साइड होने से रोकता है. लाइक मूवमेंट्स नहीं होने देता है, इसको होल्ड सिक्योर करके रखता है. ओके, तो स्ट्रैप अबव टू अ नी जॉइंट सिंपल है, इकोनॉमिकल है, यूज्ड इन अ लो एक्टिविटी पेशेंट्स. सो ये थोड़ा चीप एंड सिंपल है, इजी कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एल्डरली पेशेंट्स के लिए यूजफुल है. डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ना पिशनिंग हो सकता है, पिशनिंग मूवमेंट्स होगा, लेस सिक्योर हो सकता है. ओके, नेक्स्ट कम टू अ स्लीप सस्पेंशन. स्लीप सस्पेंशन लाइक ये इलास्टिक स्लीप है जो थाइस से सॉकेट तक कवर करता है. आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोस्थेसिस है एंड जस्ट उसके ऊपर से एक स्लीप सस्पेंशन का यूज किया गया है. ये रबर या नियोप्रेन मटेरियल का बना होता है. नियोप्रेन स्लीप कवर थाई एंड सॉकेट्स, क्रिएट अ सक्शन इफेक्ट एंड रिड्यूस अ पिशनिंग. तो ये काम कैसे करता है? ये स्लीप जो है वो एयर टाइट सील क्रिएट कर देता है और सक्शन इफेक्टिवली प्रोड्यूस करता है. ओके, तो यहाँ पे ये हमारा जो प्रोसेस है वो इजीली होल्ड रहेगा. तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि बेटर कॉस्मेटिक है, रिड्यूस ऑफ पिशनिंग, कंफर्टेबल है. बट डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे स्वेटिंग पेशेंट्स को ज्यादा होने लग जाते हैं, स्किन इरिटेशंस हो सकती है. ओके, नेक्स्ट कम टू अ पिन लॉक सिस्टम. सो पिन लॉक सिस्टम आई थिंक इज क्लियर. लाइक पिन लॉक सिस्टम सस्पेंशन काम कैसे करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं. लाइनर के जो डिस्टल एंड है वहाँ पर एक पिन होता है जो सॉकेट को अंदर से लॉक मैकेनिज्म में क्लिक हो जाता है. ये लॉक और अनलॉक कर देता है. लाइक ये पिन मैकेनिकली लॉक होती है, आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए प्रोसेस सिक्योरली यहाँ पे अटैच हो जाता है. डिजिटल पिन अटैच टू अ लाइनर, पिन लॉक इनटू अ सॉकेट. एडवांटेज क्या है? वेरी सिक्योर है,
इजी डॉनिंग है, क्लिक साउंड से पता चल जाता है कि लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। मिनिमल पिशनिंग मूवमेंट्स रहेगा। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि डिजिटल ट्रैक्शन फोर्स होता है, एंड पेन हो सकता है एंड एरियाज पे, अलाइनमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, तो डिजिटल ट्रैक्शन डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज वैक्यूम सस्पेंशंस। तो वैक्यूम लाइक ये क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, इसमें सॉकेट के अंदर से एयर रिमूव की जाती है जिससे कि एक्टिवली निगेटिव प्रेशर सिस्टम जनरेट हो। तो ये निगेटिव प्रेशर सिस्टम है, ये क्या करता है, एकदम टाइटली सील कर देता है सॉकेट को लिम से एज अ वैक्यूम की तरह, बिल्कुल सक्शन कप की तरह। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी पिशनिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स नहीं होता है, एयर रिमूव फ्रॉम अ सॉकेट। एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, ऑलमोस्ट जीरो पिसनिंग है, बेटर प्रोप्रियोसेप्शंस है, बेस्ट गेट एफिशिएंसी है देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा मेंटेनेंस को रिक्वायर करता है। ओके, so I think it's clear like all other suspension system. Now come to our structural components. Structural components like endoskeleton और exoskeleton. So I think you know endoskeleton system में internal parallel structures होते हैं जो metal rod की तरह load bearing करता है, and exoskeleton system like ये outer hard cells होते हैं, rigid outer cells होते हैं, durable है, लाइक ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, लेकिन अलाइनमेंट एडजस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है यहाँ पे, बट यहाँ पे अलाइनमेंट एडजस्टेबल बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इज क्लियर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट प्रोस्थेटिक फुट इन ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस में जो प्रोस्थेटिक फुट होते हैं लाइक इसमें सच फुट होता है, सच फुट में यू नो एज अ सॉलिड एंकल कुशंस हील होती है, एंड इसमें कील वुडन कील भी होते हैं। ओके, जो जैसे कि एंकल जॉइंट्स मूवमेंट्स नहीं होता है इसमें, इकोनॉमिकली और लो एक्टिविटी पेशेंट्स के लिए स्टेबल है। सॉलिड एंकल कुशन हील एंड नो ट्रू एंकल मोशंस। इसमें कुछ सिंगल एक्सिस भी फुट की होती है, सिंगल एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस फुट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल प्रोस्थेसिस, सो एक ही प्लेन में यहाँ पे मूवमेंट्स होगा। लाइक इस फुट में मैकेनिकल एंकल स्विंग्स होता है जो सिर्फ डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन से अलाउ करेगा। अर्ली हील स्ट्राइक पर स्टेबिलिटी देता है, स्पेशली नी इंस्टेबिलिटी वाले पेशेंट्स के लिए यूजफुल है। ओके, हेल्प इन अ नी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज मल्टी एक्सिस फुट। मल्टी एक्सिस फुट मीन्स मल्टीपल प्लेन में मूवमेंट्स अलाउ करता है, लाइक डॉर्सिफ्लेक्शंस, प्लांटर फ्लेक्शंस, इनवर्जन और इवर्जन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी एक्सियल। ओके, सो इसमें और अदर प्लेन होते हैं अलाउ करता है इवर्जन और इवर्जन भी, बेटर और अनइवन ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट डायनेमिक फुट, डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट। सो आई थिंक यू नो डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट लाइक एनर्जी स्टोरिंग होता है। ये क्या करता है, ये फुट मेन कार्बन फाइबर स्टील का होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रिलीज करता है ड्यूरिंग अ पुश ऑफ फेज। ओके, तो ये गेट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और वॉकिंग नेचुरल फील होती है। एक्टिव और यंग पेशेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस होता है। ओके, ये हमारी ही एनर्जी को स्टोर करके और उसको यूज करता है पुश ऑफ फेज में। ओके, सो कार्बन फाइबर का बना है, स्टोर एनर्जी इन स्टांस फेज, रिलीज एट अ पुश ऑफ फेज, यूज्ड फॉर एक्टिव पेशेंट्स। सो आई थिंक यू नो क्लियर लाइक सच फुट, फ्लेक्सिबल कील, इसमें कील होता है, एनर्जी स्टोरिंग और डायनेमिक रिस्पॉन्स, सिंगल एक्सिस, मल्टी एक्सिस। Now come to an ankle disarticulation or a SIME process. So SIME amputations or SIME process, I think you know like ankle disarticulations होता है जहाँ पे talus और calcaneus को remove कर देते हैं और heel pad जो है वो preserve रहता है। इसका मेन पर्पज है heel pad weight bearing surface की तरह यहाँ पे यूज होता है। तो SIME process is used after amputations through the ankle joints with preservations of a heel pad. ओके, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बोथ जो एंकल डिसआर्टिकुलेशंस होता है लाइक एम्पुटेशन जॉइंट्स लाइन पर होता है, टिबिया और फिबुला रहते हैं और हील पैड जो है वो प्रिजर्व होता है। ओके, एंड बेयरिंग स्टम्प, वल्वस डिस्टल एंड बेटर वेट टॉलरेंस। एनर्जी कंजप्शन बहुत ही कम है कंपेयर टू अ हायर लेवल। ओके, सो लॉन्गर लीवर आर्म देखने को मिलता है, गुड वेट बेयरिंग है, बेटर प्रोप्रियोसेप्शंस है, लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर्स। ओके, नाउ कम टू अ कंपोनेंट्स ऑफ अ SIME प्रोस्थेसिस। सो कंपोनेंट्स में लाइक हम डिस्कस करेंगे सॉकेट। सो यहाँ पे सॉकेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से होते हैं बिकॉज स्टम्प इज बल्बस है, स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो दो कॉमन टाइप्स के देखेंगे, विंडो टाइप सॉकेट और अ पोस्टीरियर ओपनिंग सॉकेट। सो विंडो टाइप सॉकेट लाइक सॉकेट का जो साइड पर एक विंडो ओपनिंग होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में एक विंडो ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं विंडो टाइप सॉकेट। लाइक इसका मेन जो पर्पस है लॉन्ग बल्बस रेजिडुअल लिम्ब को अकोमोडेट करना और प्रोस्थेसिस को इजीली
डोनिंग और डॉफिंग करना, मीडियल ओपनिंग होगी। पोस्टीरियर ओपनिंग सॉकेट में क्या होता है कि सॉकेट के पोस्टीरियर वाल पे एक ओपनिंग होता है और फ्लैप क्लोजर होता है। इसका जो मेन पर्पस है हील पैड को इंटैक्ट रखते हुए प्रोस्थेसिस को फिट करना एंड क्लोज फिट और गुड सस्पेंशन प्रोवाइड करना। ओके, सो आई थिंक इस क्लियर लाइक साइन प्रोस्थेसिस का जो सॉकेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेन पर्पस अलाउ इंसर्शन ऑफ अ बल्बस स्टम्प। नेक्स्ट इज कम टू अ सस्पेंशन। सो इसका सस्पेंशन कैसे होता है, लाइक सस्पेंशन तो सस्पेंशन क्रिटिकल होगा क्योंकि हील पैड इंपॉर्टेंट वेट बेयरिंग इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे कुछ सस्पेंशन है लाइक सेल्फ सस्पेंशन, स्लीप सस्पेंशन और अ सक्शन पॉसिबल। सेल्फ सस्पेंशन लाइक रेजिडुअल लिम्ब शेप ही जो है वो प्रोस्थेसिस को होल्ड करता है, तो इसमें कोई भी बेल्ट और कोई भी सस्पेंशन की नीड नहीं होती है क्योंकि इसका जो शेप है लाइक हील पैड है वो खुद ही जो हमारा प्रोसेस है उसको होल्ड कर सकता है। ओके, स्लीप सस्पेंशन क्या होता है, इलास्टिक स्लीप सॉकेट को थाई के ऊपर होल्ड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्लीप सस्पेंशन। ये बेटर सील होता है, कंफर्टेबल होता है, बट यहाँ पे पेशेंट्स को स्वेटिंग हो सकती है। सक्शन पॉसिबल क्या होता है, सक्शन सस्पेंशन जो है लाइक ये एयर टाइट सील बनाता है, लाइक नेगेटिव प्रेशर्स को क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट सस्पेंशन है। मिनिमल पिशनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे पेशेंट्स को ड्रॉनिंग में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ओके, सो आई थिंक इस क्लियर लाइक सेल्फ सस्पेंशन जो कि पेशेंट्स खुद से ही इसका यूज कर सकता है, जो कि रेजिडुअल लिम्ब पे ही होल्ड रहता है। और स्लीप सस्पेंशंस लाइक इलास्टिक स्लीप सॉकेट जो कि थाई के ऊपर होल्ड करते हैं, जैसे कि हमने अभी ट्रांस टेबल में भी डिस्कस किया हुआ था, एक ऊपर से सिलिकॉन टाइप की जो स्लीप यूज किया हुआ था। एंड सक्शन पॉसिबल लाइक सक्शंस जो है वो एयर से क्रिएट होगा, वैक्यूम टाइप का। ओके, नेक्स्ट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेम एज अ पायलन और एंडोस्केलेटन। सो पायलन आई थिंक लाइक यूजली वेट डिस्ट्रीब्यूशंस में हेल्प करते हैं। प्रोस्थेटिक फुट में क्या होगा, मॉडिफाइड सैच फुट। मॉडिफाइड सैच फुट लाइक बेसिक यूज फॉर अ सैक ऑब्जर्प्शंस और इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे सैच लाइक स्टेबल होगा, कुशंस वाला होगा, कील प्रेजेंस होगी। ओके, तो फुट एंकल में सैच फुट मल्टी एक्सिस और सिंगल एक्सिस होते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और डायनेमिक रिस्पॉन्स लाइक हमारे ही एनर्जी को लाइक कंज्यूम करके स्टोर करके उसको यूज करता है हमारे ही पुश ऑफ फेस में। ओके, सो एडवांटेज क्या है शाइम के, लाइक ये एंड बियरिंग पॉसिबल है, यहाँ पे वेटर प्रोप्रिसेप्शन है, मोर स्टेबल गेट है, लोअर एनर्जी डिमांड है। यहाँ पे सिंगल एक्सिस, मल्टी एक्सिस फुट और डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट भी देखने को मिलते हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो साइम एज अ मिनिमल एनर्जी इंक्रीज, ट्रांसटेबल एज अ 10 to 20%, but transmural need a higher energy conservations. Okay, now come to a very important foot prosthesis. Next is a foot prosthesis. So foot prosthesis is a artificial replacements provide when a partial or completely foot is amputated, like when a aim of restore a weight bearing balance and forward progressions during a gait. Okay, तो I think is clear, like artificial structures है जो कि रिप्लेस किया जाता है एंड मेंटेन करके रखता है, रिस्टोर करके रखता है हमारी वेट बेयरिंग और बैलेंस को। सो इट्स प्ले अ मेजर रोल इन अ सॉक एब्जॉर्प्शंस, वेट ट्रांसफर, बैलेंस, पुश ऑफ ड्यूरिंग अ वॉकिंग। ओके, सो लाइक हील स्ट्राइक एब्जॉर्ब करने में, मेरे स्टांस में बॉडी वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पुश ऑफ में प्रपोल्सन देता है। तो ये गेट साइकिल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ अ प्रोस्थेटिक फुट। So main function of prosthetic foot like absorb a shock at a heel strike, provide a stable mid stance support, allow a smooth rollover, store and release energies, adapt to uneven surface, maintain a balance. So all are the functions of prosthetic foot. Now come to a components of prosthetic foot. So components is very important. Like design करते हैं variable होते हैं. Okay, so first as a keel or a heel, bumper, ankle mechanism. So I think as a heel usually cushions material से बना होता है, shock absorbers के लिए होता है during a heel strike and help in a smooth transitions. Okay, जितना ज़्यादा heel soft होगा उतना smooth gait होगा.
एंड नेक्स्ट कील. सो यू नो कील इंटरनल रिजिड स्ट्रक्चर्स है, फुट के अंदर होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप का, जो कि हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स फुट में एनर्जी स्टोर करता है. सो आई थिंक इस क्लियर. आपसे कभी फंक्शंस पूछा जा सकता है कील क्या है, तो कील का जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी स्टोर करना है. कार्बन फाइबर कील होती है जो कि एनर्जी स्टोर करके उसको रिटर्न देती है. ओके. नेक्स्ट बम्पर. जो बम्पर है वो रबर बम्पर है, लाइक ये इलास्टिक कंपोनेंट्स है जो एंकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. लाइक ये हमारे जो डॉर्सी फ्लेक्सर प्लांटर फ्लेक्सेस मूवमेंट्स है ना उनको लिमिट करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके. तो मोस्टली ये ना हमारे सिंगल एक्सिस फुट पे ही यूज होते हैं. प्लांटर डॉर्सी हो गया. ओके. नेक्स्ट एंकल मैकेनिज्म इन हर प्रेजेंस. सो मैकेनिकल या फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है जो फुट मूवमेंट्स को अलाउ करता है. सिंगल एक्सिस वन प्लेन मूवमेंट्स पे होगा, मल्टी एक्सिस एज अ मल्टीपल प्लेन मूवमेंट्स पे होगा. तो एंकल मैकेनिज्म जो है वो गेट स्मूथनेस को इम्प्रूव करता है. एंड लास्ट इज अ कॉस्मेटिक कवर. सो कॉस्मेटिक कवर आई थिंक एज अ फोम और सिलिकन जो आउटर कवर होता है जो नेचुरल फुट जैसा अपीयरेंस देता है. कॉस्मेटिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, शेप मेंटेन करने के लिए इसका यूज करते हैं. तो ये तो हमारे हो गए ऑल कंपोनेंट्स. ओके. नाउ कम टू अ टाइप्स ऑफ फुट प्रोस्थेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टाइप में फर्स्ट जो हमारा टाइप है सैच फुट है. सो सैच फुट लाइक ये जो सच फुट है सॉलिड एंकल कुशन हील. इसमें कोई मैकेनिकल एंकल ज्वाइंट्स नहीं होता है. इनसाइड एक रिजिड कील होती है और हील पोर्शंस होता है जो कि सॉफ्ट कुशन मटेरियल का होता है. ये हील स्ट्राइक के टाइम शॉक एब्जॉर्ब करता है और स्मूथ ट्रांजिशंस देता है. राइट. तो सिंपल डिजाइनिंग है, इकोनॉमिकल है, लो एक्टिविटी पेशेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस माना जाता है. ओके. तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वुडन और रिजिड कील होती है, इसके अंदर रबर हील कुशन है, कॉस्मेटिक कवर है. आई थिंक इस क्लियर. लाइक हमने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया हुआ है, ऑर्थोसिस में भी पढ़ा है और अभी तक हम सच को डिस्कस करते हुए आए. मेन एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, ड्यूरेबल है, लो कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस है. ओके. डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये कोई भी एंकल मूवमेंट्स नहीं देता. अनइवन सरफेस पर अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है इसकी, लाइक लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी है. इंडिकेशंस क्या है कि ये लो एक्टिविटी पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, एल्डरली के लिए यूजफुल है. Now come to a single axis foot. So I think single axis foot like जिस फुट में मैकेनिकल एंकल जो है वो ओनली वन हिंज होता है जो सिर्फ डॉर्सी फ्लेक्सर और प्लांटर फ्लेक्सेस मूवमेंट को ही अलाउ करेगा. ओके. सो इसके अंदर रिबर बम्पर्स लगे होते हैं जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. अर्ली हील स्ट्राइक के टाइम ये नी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. लाइक इसमें हिंज एंकल ज्वाइंट्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर रबर बम्पर्स. ओके. बायोमैकेनिक्स इसकी क्या है कि कंट्रोल अ प्लांटर फ्लेक्शन एट अ हील स्ट्राइक, इम्प्रूव अ नी स्टेबिलिटी. एडवांटेज लाइक ये बेटर स्टांस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल फॉर अ नी स्टेबिलिटी, बेटर शॉक एब्जॉर्प्शंस. डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा हैवियर होते हैं, साइड टू साइड मूवमेंट्स कराते हैं, सॉरी साइड टू साइड मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं. ओके. मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट कम टू अ मल्टी एक्सिस फुट. मल्टी एक्सियल फुट लाइक मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट्स अलाउ करता है, लाइक डॉर्सी फ्लेक्सर एंड प्लांटर फ्लेक्सर इन वर्जन ई वर्जन, सो अलाउज अ मल्टीपल प्लेन. ओके. सो इज ऑल आर मूवमेंट्स. मेन एडवांटेज क्या है इसके कि ये अनइवन ग्राउंड पर भी चलने वाले पेशेंट्स के लिए यूजफुल है क्योंकि ये ग्राउंड इरेगुलरिटीज को एडेप्ट करता है, बेटर बैलेंस है, बेटर वर्किंग ऑन अनइवन सरफेस, इम्प्रूव बैलेंस, नेचुरल फील देता है. ओके. आउटडोर में इसका यूज करते हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि मोर मैकेनिकल पार्ट्स. ओके. लाइक ये थोड़ा कॉस्टली है, मेंटेनेंस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट फुट इज अ फ्लेक्सिबल कील फुट. फ्लेक्सिबल कील फुट. सो आई थिंक एज अ कील एज अ हेल्प इन अ एनर्जी स्टोरेज लाइक डायनामिक फुट में यूज करते हैं. ओके. तो इसका मेन काम है जो एनर्जी आई है उसको स्टोर करके उसको रिवर्स देना. सो इज अ नॉन आर्टिकुलेट फुट विद अ फ्लेक्सिबल इंटरनल कील, फंक्शन स्मूथ रोल ओवर, माइल्ड एनर्जी रिटर्न, मॉडरेट एक्टिविटी यूजर्स. ओके.
Next come to a dynamic response or a energy storing food. So dynamic is like a response, as a dynamic response food जो है वो prosthetic foot है, like made on a flexible carbon fiber keel that help in a store energy during a stance phase and the release during a push off phase. So इसलिए इसे एनर्जी स्टोरिंग एंड एनर्जी रिटर्न फुट भी बोलते हैं. सो कार्बन फाइबर फुट डिजाइन टू स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग अ स्टैंस एंड रिलीज ड्यूरिंग अ पुश ऑफ. तो इसका जो मेन बायोमैकेनिक है, जब पेशेंट्स वेट डालता है तो कार्बन फाइबर बैंड होते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो पुश ऑफ के टाइम ये स्टोर एनर्जी रिलीज होती है जो फॉरवर्ड प्रोपल्सन देता है, राइट. तो एक टाइप का ये नेचुरल एंकल पुश ऑफ की तरह काम करता है. सो कार्बन प्लेट बैंड इन अ मिड स्टांस, एनर्जी रिलीज इन अ टर्मिनल स्टांस. सो मेन एडवांटेज improve a gait efficiency, better walking efficiency, reduce energy expenditures, suitable for an active individual, smooth and dynamic walking. डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, अलाइनमेंट सेंसिटिव होते हैं थोड़ा, एंड लो एक्टिविटी पेशेंट्स के लिए थोड़ा अननेसेसरी है. ओके, नेक्स्ट कम टू अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल फुट. सो माइक्रो प्रोसेसर फुट आई थिंक एक एडवांस्ड प्रोस्थेटिक फुट है जिसमें सेंसर्स और कंप्यूटर चिप होते हैं जो एंकल मूवमेंट्स को रियल टाइम एडजस्ट करते हैं. मोस्टली स्पोर्ट्स में यूज होते हैं ये. ओके, तो बेस्ट फीचर्स क्या है इसके कि ये एडजस्ट एंकल रेजिस्टेंस, अडेप्ट टू स्लोप्स एंड स्टेयर्स, इम्प्रूव सेफ्टी. तो इसमें हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक टाइप्स हमारे जॉइंट्स एक्सेस होते हैं, ब्लूटूथ प्रोग्रामिंग ऑप्शंस होता है, कंप्यूटरिंग ऑप्शंस होता है, रियल टाइम डेटा देते हैं. ओके, इंडिकेशंस क्या है, हाई एक्टिविटीज यूजर, एक्टिव कम्युनिटी एम्बुलेटर्स में यूज कर सकते हैं, अनइवन सरफेस पे यूज कर सकते हैं, यंगर मोटिवेटेड पेशेंट्स के लिए है, गुड बैलेंस एंड कॉग्निशन स्पोर्ट्स के लिए है. ओके, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि पुअर कॉग्निशंस एबिलिटी है, वेरी लो एक्टिविटी लेवल, सीवियर बैलेंस डिसऑर्डर. सो इज अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल फुट. लास्ट इज अ जयपुर फुट. जयपुर फुट, आई थिंक जयपुर फुट इज अ लो कॉस्ट फुट, रबर बेस्ड फुट है. एक्चुअली इसमें मल्टी एक्सल प्रोस्थेटिक फुट डिजाइन होता है, लाइक अलाउ करता है बेयर फुट वॉकिंग, स्क्वाटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेग, स्पेशली सुटेबल फॉर अ इंडियन लाइफस्टाइल. ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिजाइन किया गया फंक्शनल फुट है, रबर बेस्ड है, मल्टी एक्सल फुट डिजाइन फॉर अ बेयर फुट वॉकिंग एंड स्क्वाटिंग. मेन फीचर्स मेड फॉर अ रबर एंड वुडन कील, अलाउ सिटिंग क्रॉस लेग, वाटर प्रूफ है, बेयर फुट वॉकिंग पॉसिबल है, मल्टी एक्सियल है, लो कॉस्ट है, स्क्वाटिंग कर सकते हैं, क्रॉस लेग सिटिंग अलाउ करता है. तो ये इंडियन कल्चरल एक्टिविटीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और ये जयपुर ने डिजाइन दिया है, तो इसलिए इसको हम जयपुर फुट बोलते हैं. एडवांटेज लाइक कल्चरली एडेप्टेबल है, सुटेबल फॉर इंडियन लाइफस्टाइल, वेरी इकोनॉमिकली है, अलाउ स्क्वाटिंग, फ्लोर सिटिंग, गुड एडेप्टेबिलिटी. बट एक डिसएडवांटेज भी है कि हैवियर है देन अ मॉडर्न कार्बन फुट से, लिमिटेड एनर्जी रिटर्न देता है, कॉस्मेटिक फिनिशिंग बेसिक है. ओके, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी देता है. सो आई थिंक इज क्लियर कि ये जयपुर फुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जयपुर ने दिया है. एक और सॉरी, यहाँ पे एक फुट है जो स्किप हो गया है, कॉस्मेटिक फुट. सो आई थिंक नेक्स्ट जो कॉस्मेटिक फुट है इसका मेन पर्पज है फंक्शनल से ज्यादा अपीयरेंस पे ध्यान देना. ये नेचुरल फुट जैसा दिखता है, लाइट वेट है, लेकिन इसमें मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो कम होते हैं, इसलिए ये हाई एक्टिविटी के लिए सुटेबल नहीं है. मेनली एज अ यूज फॉर अ टोर टो एम्पुटेशंस में यूज कर सकते हैं इसको, लाइक इसमें फिंगर्स और टोज एम्पुटेशन हुआ हो वहाँ पे कॉस्मेटिक का यूज किया जाता है. तो इसका जो मेन एडवांटेज होते हैं गुड अपीयरेंस और साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस के लिए यूज करते हैं. डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी होती है, लो फंक्शनल इफिशियंसीज देखने को मिलती है. सो आई थिंक इज क्लियर ऑल आर फुट. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बाइबा पॉइंट्स है. सो सच फुट आई थिंक मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक फुट, डायनेमिक रिस्पॉन्स कार्बन फाइबर का होता है जो एनर्जी स्टोर करता है, सिंगल एक्सिस लाइक हेल्प इन नी स्टेबिलिटी, मल्टी एक्सिस
help in uneven ground adaptations, therefore foot use for a squatting possible. Okay, so that's all guys. We have successfully covered all lower limb prosthesis level in detail. I hope the concepts are absolutely clear to and this doesn't add real value for your understanding. If you have found this videos helpful, so please don't forget to like the video and subscribe to the channel. Really, your support really motivate to create a more quality content for you. If you have any doubts or queries, so feel free to ask in our comment section. I will definitely respond. In next class, I will be covering important MCQs related to a prosthesis. So stay tuned. Thank you so much for watching. Take care, keep learning, and see you in the next class. Bye bye. Take care.